ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، محکمہ تعلیم فیصل آباد نے 18 سال بعد 143 جعلی اساتذہ پکڑ لیے۔ ویریفیکیشن میں ڈگریاں اور کچھ تقرر نامے بوگس پائے گئے۔ یہ ایجوکیٹرز 12 سے 18 سال تک تنخواہیں لیتے رہے۔ ڈیو ایلیمنٹری فیمیل مسز رضیہ تبسم نے کیسز اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں بوگس بھرتیوں کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ ڈیو ایلیمنٹری رضیہ تبسم نے ویریفیکیشن کے دوران 18 سال سے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والی 143 بوگس فیمیل ایجوکیٹرز کو پکڑ لیا۔ ریکارڈ چیک کرنے کے دوران ان ایجوکیٹرز میں سے کسی کی ڈگریاں بوگس نکلیں تو کسی کی جوائننگ اور تقرری کے لیٹرز کا ریکارڈ ہی محکمے کے پاس موجود نہیں۔ 143 بوگس ٹیچرز کی ہمارے پاس ایک لسٹ آئی، جس میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ نہ تو ان کے آرڈرز ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، ہمارے آفس سے ایشو ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلا کہ ویریفیکیشن کا پروسیس دوبارہ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سال 2002 سے 2008 تک مختلف ادوار میں بھرتیوں کے دوران ان خواتین کی طرف سے بوگس ڈاکومنٹس کی مدد سے محکمہ تعلیم میں نوکری حاصل کی گئی اور اس وقت کے افسران بھی آنکھیں بند کر کے ان کو سکولز میں جوائننگ کروا دی گئی۔ بوگس ایجوکیٹرز 18 سال سے بوگس بھرتیوں پر تنخواہیں لے رہے تھے۔ ہم انشاءاللہ سارا جو کام ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے کر رہے ہیں اور 143 کی جو لسٹ ہے اس کو ہم نے پورا سکروٹنائز کر لیا ہے اور اس وقت جو ان کے کیسز ہیں وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں بھجوائے جا رہے ہیں تاکہ اس پہ مزید کارروائی ہو سکے اور جتنے بھی ٹیچرز بوگس ہیں ان کی ریکوری جو ہے وہ گورنمنٹ ٹریجری میں کروائی جا سکے۔ ڈیو ایلیمنٹری فیمیل مس رضیہ تبسم نے بوگس ٹیچرز کے کیسز اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے ہیں۔ محکمانہ افسران یا ملازمین کے ملوث ہونے اور بوگس ایجوکیٹرز سے تنخواہوں کی ریکوری کے لیے تحقیقات محکمہ اینٹی کرپشن کرے گا۔ کیمرامین شہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت غیر ضروری قرار۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 2013-14 رپورٹ سینٹ کی قانون انصاف کمیٹی میں جمع کرا دی۔ شادی بیاہ کے اندراج کو اسی طرح برقرار رکھا جائے۔ شوہر کو شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ نکاح کے لیے شوہر کو ثالثی کونسل سول جج سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں۔ مردوں کی جانب سے اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کو سراہا گیا ہے۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے شادی کی جائے تو اچھی بات ہے، اگر بیوی اجازت نہ دے تو مرد اسلام کے مطابق 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اس میں زبردستی کوئی نہیں ہے کہ نہیں لازمی کرو، اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں اپنی بیگم کے ساتھ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 2013-14 کی رپورٹ سینٹ کی قانون و انصاف کمیٹی میں جمع کرا دی، جس کے مطابق بیک وقت 4 بیویوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ اور مرد کو جو ہے وہ پہلی بیوی سے اجازت کی بالکل ضرورت ہونی چاہیے، اور کیونکہ اس کا جو ہے وہ پورا حق ہے مرد پہ، اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہوا ہے عورت کو مرد پہ کہ اسے ضرورت نہیں ہے پہلی بیوی سے اجازت کی، مگر ہمارے اس معاشرے میں جو وقت کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو جو مسائل ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق بیاہ شادیوں کے اندراج کو اسی طرح برقرار رکھا جائے۔ احتجاج رنگ لے آیا۔ شادیاں اب سوشل ڈسٹنس کے ساتھ شادی ہالز میں ہو سکیں گی۔ تجاویز بھی مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے شادی ہالز اور مارکیز کے کام سے وابستہ ہزاروں افراد کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے انتظامیہ سے 1 ہفتے میں تجاویز طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق شادی ہالز کھولنے کے حوالے سے انتظامیہ کو SOPs کی تیاری کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جانے والی تجاویز NCOC کے اجلاس میں رکھی جائیں گی۔ تجاویز کی منظوری کے بعد شادی ہالز اور مارکیز کھول دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر صنعت اسلم اقبال نے ستمبر میں شادی ہالز کھولنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ کورونا کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پنجاب میں کورونا کے باعث جاری لاک ڈاؤن کے تحت تعلیمی ادارے، شادی ہالز، ریسٹورنٹس، پارک اور سینما ہالز بدستور 30 جولائی تک بند رہیں گے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیلوں کی سرگرمیوں کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن کے تحت جاری پابندیوں میں مزید 15 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے، شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور سینما ہالز بدستور بند رہیں گے۔ سماجی و مذہبی اجتماعات، کھیلوں کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام کاروباری مقامات پیر سے جمعے کی صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز، چکی، تندور، زرعی ورک 24 گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ کمالیہ میں دریائے راوی ملفتیانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب آ گیا۔
बहाव ज्यादा होने से अपनी मददाफ के तहत बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया और किसानों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आबाद। को 11 साल कबल जिला का दर्जा मिला। 2009 से अब तक जिला में कई बार सैलाब ने तबाहकारियां मचाई। गुज़िश्ता सालों में आने वाले सैलाबी रेलों से जिला भर में 140 मौजूदात सैलाबी पानी की नजर हुए, जबकि 2,20,000 से ज्यादा मकीन मुतासिर हुए। 2014 में आने वाले सैलाबी रेले ने 5,000 से ज्यादा मुरब्बे पर मुहित फसलों को नुकसान पहुँचाया। सैलाब से कोट अमीर शाह, दुशहरी, काजियां, सलारा, बाबू राय, मोचियांदा ठट्टा, दियोरो का ठट्टा, जामब, मोरान वाला और खोकरा वाला, झुमटा वाला, रायचंद वाला, जीने वाला समेत दीगर इलाके मुतासिर हुए। बेटा सबसे ज्यादा जो नजदीक पे है ना, ये कोट अमीर शाह, ठट्टी, वो बका चाड़ा, आगे वर्षा, शेख वगैरह सारे आ जाते हैं जी। तो इधर नीचे चले जाओ, ये चिनोट भी साथ है और आगे नीचे वो है वर्षा, शेख वगैरह, ठीक है ना जी, वो सारे ये आ जाते हैं, किनारे पे ही हैं जी, तो इनको खतरा होता है। महकमे मौसमियात की जानिब से रवां साल 20% ज्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। मामूल के मुताबिक माह जनवरी और अगस्त में पानी की सतह मामूल से ज्यादा देखी जाती है। ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योर। और जंग में गुज़श्ता सालों में सैलाब से 16 इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जिनमें 30,000 अफराद को रेस्क्यू की जानिब से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जंग में जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। NDMA की जानिब से सैलाब की वार्निंग जारी की गई है, जिसके बाइस तमाम जिले इदारों को अलर्ट रखा गया है। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे किया जा रहा है। साल 2014 के सैलाब में 16 मकामात से 30,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। ताहम अब इंतजामात को मजीद बेहतर किया गया है, जबकि अवामी आगाही का सिलसिले के तहत रेस्क्यू की जानिब से इलाके में रजाकार टीमें भी तैयार की गई हैं। 2014 के फ्लड के हवाले से अगर हम स्टैट्स को मद्देनज़र रखें तो उसमें भी हमने तकरीबन 30 से 32 हज़ार जो लोग थे उनको हमने एवैक्यूएट किया था। उसी हवाले से हमारे पास इस वक्त काफ़ी मिक़दार में बोट्स मौजूद हैं, OBMs हमारे मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन के मुताबिक रेस्क्यू की जानिब से 40 कश्तियाँ खसूसी तौर पर सैलाब के लिए मुख्तस की गई हैं, जबकि 50 कश्तियों के इंजन भी फौरी तौर पर फराहम कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि तमाम जिले महकमों के बाहमी ताउन से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फ्लड प्रोन एरिया है जंग, जो मेन डिजास्टर है, हर साल वो हमें फ्लड का वो डील करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए डील करने के लिए तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल है, ना सिर्फ हमारी बल्कि सब लाइन डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि ये एक कंबाइन ऑपरेशन होता है। फिर रेस्क्यू के मुताबिक अवामी आगाही के हवाले से भी स्कूलों और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें नौजवान तलबा और तालबात को हंगामी सूरत हाल से निपटने की भरपूर ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जंग में शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। 100 किलो बोरी की कीमत में 800 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मजीद तफसीलात मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट में। जंग में शुगर मिल्स मालकान ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। शुगर मिल्स मालकान की जानिब से 100 किलो बोरी की कीमत में 800 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद 100 किलो की बोरी 7,400 से बढ़कर 8,200 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि फी किलो एक्स मिल रेट 82 रुपए फी किलो कर दिया गया है, जिसके बाद शहर भर में दुकानदार चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे हैं। एक्स मिल रेट 8200 रुपए है जनाब, और 83 रुपए होलसेल रेट में पड़ता है दुकानदार को, और 85 रुपये परचून जाना सेल हो रही है, और देहातों में 90 रुपये भी सेल हो रही है इस वक्त चीनी, क्योंकि उनका खर्चा किराया ज़्यादा होता है और इसलिए 90 रुपये सेल फरोख्त हो रही है देहात में। दुकानदारों का कहना था कि शुगर मिल से पहले चीनी 78 रुपए फी किलो में मिल रही थी। ताहम इंतजामिया की जानिब से 70 रुपए में चीनी फरोख्त करने की हिदायत मौसूल हुई, जिस पर अमल दरामद मुमकिन न हो सका। हम क्या करें, तो हुकूमत को चाहिए, हम वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि चीनी पे गौर करें, चीनी की कीमतें कम करें। चीनी कम होगी तो आवाम को फ़ायदा होगा। अब हम चीनी आटा और चीनी में ही परेशान है। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया से सूरत हाल बारे नोटिस देने और किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया है, ताकि चीनी की कीमतों में कमी आ सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद FBI शुगर मिल्स के ऑडिट के लिए भी मुतहर्रिक हो गई। फैसलाबाद रीजन में वाक़ई शुगर मिल्स के गुज़िश्ता 5 सालों के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटियों की छानबीन करके रिपोर्ट्स 20 अगस्त तक मुकम्मल की जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी स्कैंडल सामने आने के बाद शुगर मिलों के टैक्स ऑडिट का फैसला किया है, जिसके लिए कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सतह के अफसरान शुगर मिलों के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटियों की जांच पड़ताल करेंगे और रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाई जाएगी।
FBR हुकाम के मुताबिक 25 जुलाई तक शुगर मिलों का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा और 20 अगस्त तक ऑडिट रिपोर्ट्स मुरतब की जाएंगी और 5 सितंबर तक FBR अफसरान रिपोर्ट्स बोर्ड को भिजवाने के पाबंद हो। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स मुख्तलिफ शुगर मिलों का चीनी स्कैंडल सामने आने पर दीगर फैक्ट्रियों का टैक्स ऑडिट करके टैक्सों की शफाफियत का अंदाजा लगाया जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अमेर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। हुए आपको बताएं कि जून 2020 में तरसीलात ज़र में 50.7% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 26 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी, जबकि जून 2019 में 1 अरब 63 करोड़ डॉलर भेजे गए थे। फैसलाबाद के सनतकारों और इम्पोर्टर्स हजरात का मानना है कि अगर तरसीलात ज़र में 50.7% इजाफा हुआ है तो इसके असरात डॉलर में कमी की शक्ल में नजर आना चाहिए, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स है। अगर कोविड के 4 माह निकाल दिए जाएं तो ये 8 माह में आपकी 57% से ज़्यादा जो है वो बढ़ी है आपके फॉरेन रेमिटेंस। लेकिन आप ये देखें कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचा है, क्या इंडस्ट्री को पहुंचा है, क्या आपके ट्रेडर को पहुंचा है, क्या आपके इंपोर्टर को पहुंचा है, क्या आपकी इकॉनमी बेहतर हुई है इससे, जबकि ये सारी चीज़ों पे ये असरअंदाज होना चाहिए थी। फारूक यूसुफ का कहना था कि आज डॉलर 167 रुपये तक जा पहुंचा है। अगर तरसीलात ज़र बढ़े हैं तो डॉलर आसमानों पर क्यों पहुंचा है। इनका कहना था कि हुकूमत माशी सिस्टम को कंट्रोल करने में कासर है। अभी स्टेट बैंक के जो चीफ मैनेजर हैं उनसे बेबहा दफ़ा मीटिंग्स हो गई हैं, उन्होंने अच्छे इनिशिएट लिए हैं, लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से कासर हैं कि SME सेक्टर को अगर हमने रिलीफ देना है तो उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए। उनसे जब आप प्रॉपर्टी मांगते हैं उनके पास होती नहीं है। SME सेक्टर को समझा ही नहीं जा रहा कि SME सेक्टर है क्या। तरसीलात ज़र बढ़ने में सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का रहा है, जहां से पाकिस्तानियों ने रवा माली साल के माह जून में 2 अरब 26 करोड़ डॉलर भिजवाए हैं। सनतकारों ने हुकूमत से इसके समरात कारोबार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फेस्को के निज़ाम की खराबियां दूर न हो सकी, सार्फिन कंपनी के नकारा सिस्टम के हाथों आजिज आ गए। इसी पर यह रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बिजली की बेहतरीन तकसीमकार कंपनी की दावेदार फेस्को की बड़ी सुस्ती सामने आ गई। 132 केवी के जंग रोड ग्रिड स्टेशन का 40 MVA का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसके बायस अली हौसिन कॉलोनी, शादाब कॉलोनी, बकर मंडी, जमील पार्क समेत जंग रोड के बेशतर इलाकों में लो वोल्टेज के मसाइल सामने आने लगे हैं। फेस्को से यही हमारी दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इन मसाइल को फिक्स करें, ताकि मजीद जो चीज़ें ख़राब होने का अंदेशा है और हमारे कारोबार जो कि बिजली से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं उनका हर्ज हो रहा है, इनसे हमारी जान छूट सके। और फेस्को से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इन मसाइल को फिक्स करें। लो वोल्टेज के बायस जंग रोड की होजरी मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री भी मुश्किलात से दो चार है। चेयरमैन PHMA मियां नईम अहमद ने कहा है कि लो वोल्टेज से मसाइल का सामना है। फेस्को को मुतअद्दिद बार आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हुई, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। ये प्रॉब्लम पिछले मई से जंग रोड पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उनकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मसाइल हैं और वो उनको अनशेड्यूल्ड जो अपना लोड शेडिंग है उसका भी सामना है, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी मशीन्स हैं वो उनमें उनकी मोटरें सड़ रही हैं और प्रोडक्शन है वो 5-5, 6-6 घंटे जो बंद रहती है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ही एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा पोर्टफोलियो है जो नेशनल इकोनॉमी को फ्रेश ब्लड इंजेक्ट कर रहा है। जंग रोड के बेशतर इलाकों में लो वोल्टेज के मसाइल फेस्को के सब अच्छा के दावों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में फैजान मदीना रोड से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट को बहाल करने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सफाई करके जरूरी इकदाम करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर इशरत अली ने फैजान मदीना चौक, मदीना टाउन का दौरा किया। ग्रीन बेल्ट की तज़ीन आराइश और वहां से तजावुजात के खात्मे के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जरूरी हिदायत जारी की। फैसलाबाद में नाकिस कारकर्दगी पर SHO सरगोदा रोड लाइन हाजिर इंस्पेक्टर मियां जाहिद को CPO ने ओहदे से हटाकर फौरी पुलिस लाइंस में हाजिरी के हुक्म दे दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह को SHO सरगोदा रोड का चार्ज दे दिया गया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में नाकिस कारकर्दगी पर SHO सरगोदा रोड लाइन हाजिर कर लिए गए। इंस्पेक्टर मियां जाहिद को CPO ने ओहदे से हटाकर फौरी पुलिस लाइंस में हाजिरी करने का हुक्म दे दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह को SHO सरगोदा रोड का चार्ज दे दिया गया।
बुलेटिन में शामिल करेंगे अच्छी खबर। आपको बताएं कि तामीराती शोबे के लिए एनओसी का इजरा होगा अब सिर्फ चंद दिनों में। महकमाना इजाजतनामों और एनओसी के इजरा के लिए ई खिदमत मरकज में काउंटर कायम कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखें। DGFT मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने ई खिदमत मरकज का दौरा किया। तामीराती शोबे के लिए NOC के हसूल के लिए कायम किए गए काउंटर का मुआयना किया। सीनियर मैनेजर ई खिदमत मरकज खावर हफीज ने महकमाना अमल दरामद के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी। DGFTA ने कहा कि इस काउंटर के क़याम से करप्शन के अंसर पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे की तरक्की और फरोग हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सीनियर मैनेजर खावर हफीज ने कहा कि बिल्डर्स और डेवलपर की सहूलत के लिए महकमाना इजाजत नामों का हसूल आसान किया जा रहा है। पोर्टल के जरिए मौसूल दरख्वास्तों पर तयशुदा आयाम के अंदर काम मुकम्मल होगा। तमाम निज़ाम की कड़ी निगरानी की जा रही है। मुकर्ररा दिनों में दरख्वास्त निपटाना होगी। कावर हफीज ने बताया कि ई खिदमत मरकज में प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की मरहला वार मंजूरी, रिहायशी और कारोबारी अमारात की तामीर के मौजूदा नक्शाजात की मंजूरी और जायदादों की कमर्शलाइजेशन का काम होगा। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन यासिर एजाज चट्टा भी मौजूद थे। टोबा टैक्सी म्यूनिसिपल कमेटी साफ पानी का हदफ मुकम्मल ना कर सकी। इंतजामिया ने खुद बीड़ा उठा लिया। नादहिंदगान को 15 रोज में बिल जमा कराने का नोटिस और कनेक्शन काटने का इंदिया भी दिया। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टैक्सी साफ पानी की मद में मिलने वाला हदफ मुकम्मल ना कर सका, जिस पर इंतजामिया हरकत में आ गई और बिल जमा ना करवाने वालों को वार्निंग जारी कर दी। 15 रोज में बिल जमा ना करवाने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। म्यूनिसिपल कमेटी को सालाना 2,95,53,200 रुपए का हदफ मुकर्रर हुआ, जिसमें से सिर्फ 1,99,15,090 रुपए ही वसूल कर सका। बल्दिया इंतजामिया ने 600 रुपए जुर्माने के साथ बिल जमा करवाने की हिदायत कर दी। 5 मरला घर को सालाना 2400 रुपए बिल के साथ 600 रुपए जुर्माना अदा करना होगा, जबकि 6 से 10 मरले के घरों को 2,760 रुपए के साथ 600 रुपए जुर्माना देना होगा। यकम अगस्त से बिल जमा न करवाने वालों के कनेक्शन काटने का अमल शुरू हो जाएगा। और अब खबर शामिल करेंगे छंग से। छंग की सब्जी मंडी गंदगी में घिर गई। दाखिली दरवाजों समेत मस्जिद के तरफ गंदगी और कीचड़ के ढेर लग गए। दुकानदार ताफुन ज़दा माहौल में काम करने से बीमार होने लगे। जंग में इंतजामिया के दम तवज्जुही के बायस मरकजी तजारती इलाका सब्जी मंडी गंदगी में घिर गए। 2 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी और कीचड़ के ढेर लगे, जिसकी सफाई के लिए कोई इकदाम न किए गए। गंदगी के बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है। इस सूरत हाल के बायस आड़ती भी परेशान है। पड़े हुए हैं, जब बारिश होती है पानी और 2-3 दफा गाड़ियां भी उल्ट चुकी हैं। हमने मार्केट कमेटी वालों को भी हमने शिकायत की है। DC साहब को मैंने व्हाट्सएप किया है खुद मैसेज कि यहाँ पत्थर डलवा दें, मेहरबानी करें। और इतनी गंदगी है, ऊपर से ये कोरोना फैला हुआ है। हमें समझ नहीं आती कि हम इतनी बदबू है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, सारा तफन की बदबू मस्जिद में जाती है। दुकानदार और शहरियों का कहना था कि सूरत हाल के बाद सांस लेना भी मुहाल हो गया है। दुकानदार अपनी मदद आपके तहत सफाई करने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया कोई इकदाम नहीं कर रही। काफी देर तो साल 1.5 साल तो ही परेशानी है। सारे मतलब मुश्किल हाल है। जेडे फड़िए काम कर रहे हैं उसको भी पानी की कम से कम आप खुद देख लें कि साइड जेडी है रास्ता बिल्कुल बंद होता है। शहरियों और ताजिरों की जानिब से DC ताहिर भट्टू से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया ताकि उनको ताफुनज़दा माहौल से छुटकारा हासिल हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 छंग। चिन्योट इंतजामिया की मुबैना गफलत। 23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली नई सीवरेज पाइपलाइन फट गई और चले इंतजामिया 2 रोज बाद भी पाइपलाइन की मुरम्मत न कर सकी। चिन्योट में 23 करोड़ रुपए की खती रकम से बनने वाली सीवरेज पाइपलाइन गुज़िश्ता रोज फट गई, जो जिले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से ताहाल ठीक न की जा सकी। बाईपास रोड पर बनने वाले नए डिस्पोजल वर्क से मुल्का मेन सीवरेज पाइपलाइन फटने से मिर्च, मकाई, चारा और चावल की फसल ज़ेर आब आ गई। चंद रोज कबल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जानिब से सीवरेज पाइपलाइन का इफ्तिताह किया गया। सीवरेज पाइपलाइन फटने से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसानों ने सीवरेज पाइपलाइन पर नाकिस मटीरियल लगाने का इल्जाम लगाया है। जी, मेरी आप हुक्मरान बाला से अपील है कि ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया है या बनाया गया है, इसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। जो आपके सामने है अभी ये पूरी सही तरीके से इसकी जो है निकासी भी नहीं आ रही और ना हो रही है। निकासी होने से पहले ही या पूरा पानी छोड़ने से पहले ही ये लैंड जो है ये फट चुकी है। किसानों ने मुतालबा किया कि सीवरेज पाइपलाइन की जल्द तामीर और मुरम्मत करके फसलों से गंदा पानी निकाला जाए और फसलों के नुकसानात का फौरी अजाला किया जाए। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिनेमा इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नए सिनेमा घरों को 5 साल के लिए तफरीही ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दी। इकदाम सिनेमा मालिकान की मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए किया गया। आपको बता रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर यह है, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नए सिनेमा घरों को 5 साल के लिए तफरीही ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया और इकदाम सिनेमा मालिकान की मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए किया गया। और अब शामिल करते हैं फैसलाबाद डिवीजन से कुछ अहम और मुख्तसर खबरें सिटी राउंड अप में। वासा के ज़ेरे एहतमाम रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में डी स्लटिंग का अमल जारी। भवाना बाजार में ड्रेन्स की डी स्लटिंग करके क्लियर कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल FTA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की ज़ेरे सदारत वासा से मुतालिका इजलास हुआ। मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने कहा कि वासा की जानिब से मूनसून प्लान को मरबूत हिकमत अमली के तहत कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। कमालिया में DPO टोबा राना उमर फारूक की जानिब से क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। DSP जफर इकबाल डोगर समेत SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। DPO ने सर्कल की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में 5 माह से डीन की सीट खाली होने के सबब कंसल्टेंट डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का अमल रुक गया। UHS से भी ट्रेनिंग के लिए नए डॉक्टर्स न भिजवाए जा सके। चन्योट के DHQ अस्पताल में चिल्ड्रन प्ले एरिया सेंटर तहाल फाल न किया जा सका। महकमा सेहत इंतजामिया चिल्ड्रन वार्ड में जेर इलाज बच्चों को तफरीह की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो चुकी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने चिल्ड्रन प्ले एरिया सेंटर का दौरा करते हुए सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी RTA की जेर निगरानी ट्रांसपोर्ट्स में इंसदादे कोरोना SOPs पर अमल दरामद की चेकिंग का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी RTA ने मुख्तलिफ शहरात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रुकवा कर इंसदादे कोरोना इकदाम को चेक किया। कपड़ा मार्केट के ताजरों ने ईद तक पूरा हफ्ता कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। मदनी कॉटन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल कहते हैं ईद पर ही कारोबार चलते हैं। रश कम करने के लिए पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाजत दी जाए। स्कूल सरबराहान को नॉन सैलरी बजट की मद से तामीर मुरम्मत और स्कूल में सहूलियत बेहतर बनाने की हिदायत। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद फैसलाबाद में हॉकी और फुटबॉल ग्राउंड की मुरम्मत और 4 दीवारी की तामीर का काम जारी। थाना सदर जड़ावाला की हुदूद में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें। बढ़ती वारदातों से शहरी खौफ हरास में मुब्तला हैं। राना एहसान हमें रिपोर्ट करेंगे। डाकुओं ने चक 61 महालवाला के रिहायशी चौधरी जकाउल्ला के घर डाका डाला। डाकुओं ने अहले खाना को यरकमाल बनाकर नकदी तलाई जेवरात और कीमती सामान लूट लिया। अहले इलाका को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा शख्स का कहना था कि डाकुओं ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। 10 तोले सोना और 60,000 से ज्यादा रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। डकैत अंदर आन के जनाब उन्होंने सारा कुछ लुटिया। साडा जेवर 10 तोले तकरीबन 50 से 60,000 रुपया जी गन ले गए हैं और बदतमीजी बच्चियों के साथ की है। मुतासरा खातून के मुताबिक रात 12 बजे के करीब डाकू घर में दाखिल हुए। अलमारी की चाबियां लेने के बाद लूट मार करके फरार हो गए। रात को हमारे घर में चोरी हुई है तो चोर आए हैं, सो रहे थे बच्चे, तो उन्होंने आके जगा के गन के साथ वो सरों पे रख के तो जो जेवर नकदी थी, जेवर मतलब सोना वगैरह और बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े जो थे वो ले गए हैं। जड़ावाला में एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी वारदात है। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी भी खौफजदा हैं। उन्होंने CPO से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान अली, सिटी 41 जड़ावाला। फैसलाबाद बुनियादी मरकज़ सेहत में तय्युनात खवातीन अमले की इज्जत गैर महफूज। बुनियादी मरकज़ सेहत 136 में तय्युनात सिक्योरिटी गार्ड की दौरान ड्यूटी आया के साथ ज्यादती की कोशिश। ये रिपोर्ट देखें। बुनियादी मरकज़ सेहत में तैनात खवातीन अमले की इज्जत गैर महफूज हो गई। बुनियादी मरकज़ सेहत 136 में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने दौरान ड्यूटी आया के साथ ज्यादती की कोशिश की, जिस पर IRMNCH के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने इंक्वायरी के लिए लेडी हेल्थ विजिटर आया और सिक्योरिटी गार्ड को तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है, जुम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चक नंबर 136/24/7 हमारा सेंटर है जी समुंदरी का। यहाँ पे 7 तारीख को एक इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था, जिस पर हमने इसकी इंक्वायरी हेल्ड अप की हुई है और एक इंक्वायरी कमेटी ICO साहब ने नई भी तश्कील दे दी है।
नोटिस में कहा गया है कि आया रेहाना की जानिब से 15 पर पुलिस को कॉल करके सिक्योरिटी गार्ड वकास पर हरासा करने का इल्जाम लगाया गया है। सिक्योरिटी गार्ड वकास बुनियादी मरकज़ सेहत में वाक़या आया रेहाना की रहाइश गाह में दाखिल हुआ और उसे हरासा करने की कोशिश की। हमने वक्ती तौर पर वकास को उधर से फौरन ट्रांसफ़र कर दिया है और जैसे ही इसकी सूरत हाल वाज़ेह होती है इंशाल्लाह ज़िम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। उनका मजीद कहना है कि वाक़े की इंक्वायरी के लिए CEO हेल्थ की जानिब से भी कमेटी बना दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। गुजरात जेल हंगामा राई के बाद जेल के आला अफसरान मुतहरिक हो गए। आजी पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाही सलीम बेग का फैसलाबाद का हंगामी दौरा। फैसलाबाद सरगोदा रीजन की जेलों के तमाम सुप्रीडेंट्स का इजलास तलब कर लिया। आईजी पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग की फैसलाबाद आमद हुई और DIG दफ्तर में इजलास की सदारत की, जिसमें सईदुल्ला गोंदल DIG सरगोदा रीजन नवीद रऊफ ने शिरकत की, जबकि सरगोदा से 6, फैसलाबाद से 3, टोबा से 1 और झंग से भी 1 सुप्रीडेंट शरीक हुए। IG जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग का कहना था कि आमद का मकसद रीजन की 11 जेलों में इंतजामी अमूर का जायजा लेना है। कैदियों को कंट्रोल रेट पर अशिया फराहम करें, उनको मुलाकात में फैसिलिटेट करें और ये सारी चीज़ें थी। और मुझे बड़ा अफसोस है कि 2 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात पे हंगामा राई हुई, जिसकी वजह से स्टाफ जो सा है वो भी परेशान है। उन्होंने मजीद कहा कि कैदियों से डायरेक्ट मुलाकात करके उनके मसाइल पूछे जा रहे हैं, जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उनका कहना था कि कैदियों के लवाहिकीन से भी मुलाकात करके जेल एहलकारों के रवैये के बारे पूछा जा रहा है। कैदी भी परेशान हैं और हम इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं अपने पूरे सिस्टम का कि कहाँ कहाँ हमारे में खामियां हैं, कोताहियां हैं, ताकि उनको ठीक किया जा सके। मिर्जा शाह सलीम बेग ने कहा कि करप्ट जेल अफसरान और एहलकारों को किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। जेलों की कैंटीन के नरखनामे भी चेक किए जा रहे हैं, चीजें मुकर्ररा रेट पर ही फरोख्त हो रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। सेशन कोर्ट फैसलाबाद कमेटी रूम में तामील कुनंदगान में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ। सेशन जज राना मसूद अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेशन कोर्ट फैसलाबाद कमेटी रूम में तामील कुनंदगान में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसकी मेज़बानी सीनियर सिविल जज एडमंड मोहम्मद शहबाज हिजाजी ने की। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर तामील कुनंदगान में मोटरसाइकिल तकसीम की गई। सेशन जज राना मसूद अख्तर का कहना था कि नए भर्ती होने वाले तामील कुनंदगान को मोटरसाइकिल दिए गए हैं। तामील कुनंदगान अदालती कार्रवाई में अहम किरदार अदा करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने खुसूसी तौर पर मेहरबानी करते हुए ये बजट हमें एलोकेट किया। इस बजट का, इस फंड्स का मकसद ये था कि हम अपने जो तामील के लिए जाते हैं प्रोसेस सर्वर्स, उनको फैसिलिटेट करें। उन्होंने कहा कि तामील कुनिंदगान की परेशानी और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मोटरसाइकिलें दी गई हैं। तामील कुनिंदा अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम दें कि टाइमली सर्विस हो जाएगी दूसरी पार्टी की और वो अदालत में आ जाएंगे, अपने केस का दिफा करेंगे। और जो रिपीटेडली जाना पड़ता था या बाज़ दफ़ा दूर दराज इलाकों में जाने से वो मुश्किलात पेश आती थी, वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो हमारा टाइम बचेगा, पार्टीज़ का टाइम बचेगा। तकरीब में सीनियर सिविल जज शहबाज हिजाजी समेत दीगर जजेस भी तकरीब में सीनियर सिविल जज शहबाज हिजाजी समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ राना जाहिद नज़ीर, फैसलाबाद। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 18 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 5248 हो गई। 4587 अफराद सेहतियाब होकर घरों को चले गए। टोबा जिला भर में कोरोना का जोर टूटने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 4 मरीज रिपोर्ट हुए। सेहतियाब होने वालों की तादाद 480 तक पहुंच गई। और अब खबर तालीम के मैदान से। पंजाब हुकूमत का निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार तब्दील करने और स्कूल्स की फीसों के मुताबिक कैटेगरीज बनाने पर गौर। निजी स्कूल्स के मुतालबात पर पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार तब्दील करने का फैसला कर लिया। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। स्कूल्स को फीस के मुताबिक कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। हमारा एक देरीना मुतालबा था कि इन प्राइवेट तालीमी इदारों को मुख्तलिफ कैटेगराइज किया जाए, इनको कैटेगराइजेशन की जाए फ़ी के हवाले से। स्कूलों से मुतल्लिक कानून साजी के लिए स्कूलों की फीस भी देखी जाएगी। फीस के तनासब से स्कूलों के लिए 5 अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाएंगी। 4000 रुपए से कम फीस वसूल करने वाले तालीमी इदारों की अलग कैटेगरी होगी। A+ कैटेगरी में 15,000 रुपए से ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूल होंगे। स्कूल मालिकान की जानिब से 4000 की बजाय 2000 रुपए तक फीस वाले इदारे के लिए अलग कैटेगरी बनाने का मुतालबा किया गया है। जो इदारा 15,000 या उससे ज्यादा फीस लेता है
उससे भी वही टैक्सेस लिए जाते हैं जो 500 या 2000 तक फीस लेने वाले इदारे हैं। तो इस तरह से ये 14-15 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो एक तालीमी इदारे को देने पड़ते हैं, वो खा 500 फीस लेता है, 1000 लेता है, 2000 लेता है या 15000 लेता है। नए तरीक़ेकार में स्कूल मालिकान को दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। निजी स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा कर बैंक में फीस जमा करवाएंगे। प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन सदाकत हुसैन लोधी ने रजिस्ट्रेशन कवानीन में तरामीम के फैसलों को खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खवातीन में हॉकी के खेल का रुझान खत्म होने लगा। जुगनू क्लब फैसलाबाद ने खवातीन की हॉकी को प्रमोट करने के लिए अज़्म का इयादा किया। अली रज़ा हमें रिपोर्ट करेंगे। कौमी खेल हॉकी ज़वाल पजीर हुआ तो जुगनू क्लब मैदान में आ गई। विमेन हॉकी टीम बनाने के लिए खवातीन खिलाड़ियों से राब्ते करने शुरू कर दिए। जुगनू क्लब के ओहदेदारान का कहना है कि हॉकी बेहतरी की तरफ लाना ही हमारा अज़म है। हमने जुगनू स्पोर्ट्स क्लब जो पाकिस्तान का एक क्लब है उसके प्लेटफॉर्म से हमने ये सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया है ताकि हम पाकिस्तान की जो कौमी खेल हॉकी उसको प्रमोट कर सकें। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी कौमी गेम है हॉकी जो दिन ब दिन बहुत पीछे जा रही है, जैसे कि चैंपियंस रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे भी। विमेन खिलाड़ियों का कहना है कि वो दिन रात मेहनत करने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हमारी गेम बहुत पीछे जा चुकी है कौमी गेम, और दूसरी गेम्स को हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉकी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जुगनू क्लब वालों की जिन्होंने ये स्टेप उठाया है। हॉकी को फरोग देने के लिए जुगनू क्लब की जानिब से कैंप लगाया जाएगा जिससे नए खिलाड़ी सामने आएंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि बेरोजगारी के गम में नौजवान ने दुख का इजहार गाने के जरिए किया। पढ़ लिख कर भी नौकरियों के लिए धक्के खाते नौजवानों ने गाने के जरिए पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की खूब अक्कासी की। ये रिपोर्ट देखें। फैसलाबाद के नौजवान ने मैनेजमेंट साइंस की डिग्री निजी यूनिवर्सिटी से हासिल की। अरसा दराज से नौकरी के लिए दरबदर की ठोकरों ने पढ़े लिखे नौजवान को बेहाल कर दिया। नौजवान ने हालात और जज्बात को बताने के लिए गाने का सहारा लिया। एहतिशाम का कहना था कि गाने में अपने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के पढ़े लिखे नौजवानों के हालात की अक्कासी करने की कोशिश की है। नौजवान सिंगर एहतिशाम का मजीद कहना था कि वजीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो अपना नौकरियां देने का वादा पूरा करें। हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। ये गाना सुनने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मामले पे ज़रूर कुछ गौर करेंगे, नौकरियां छीनने की बजाय देने के बारे में सोचेंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।